Assalamualaikum everyone. Welcome to the fourth special interest group session on cloud technologies. I'm Hashim Barak, and today we are going to be focusing a little deeper in IBM's cloud offering. We are joined here by Mr. Mohammad Ahsan Khan. He is the cloud developer advocate at IBM Pakistan. Ahsan will be giving you a overview, and he will be drilling down into a couple of technical aspects of IBM cloud offerings. Things like Kubernetes, some of the learning offerings from Kubernetes themselves, a couple of things regarding code, and at the end, Ahsan will be sharing with you the University Developer Series that IBM runs, where students from different universities can be enabled on cloud offerings. Normally, those of you who are joining from the past, we do have Dr. Arshad Ali, who is the president of SpinLab, uh, share with you some of his vision and the opening remarks, where he touches upon why we established these sessions and things about SpinLab in us. So today he unfortunately had a death in his family, so he had to travel and he would not be available. We uh, will start with Mr. Asen. Uh, some quick housekeeping rules. We do have a question and answer session at the end. So once Asen completes his part, you're welcome to ask questions or share your comments and thoughts. Also, we'll be sharing the recording and the slide deck as usual on our website and our YouTube channel. So if you want to go back and listen to it, or you want to share it with your colleagues or your fellows, please make use of this opportunity. With this, I'll begin and I'll hand it over to uh, Mr. Ahsan Khan from IBM Pakistan to share with you some of these opportunities and the landscape in cloud offering offered by IBM. Ahsan, over to you. Thank you so much for joining us today, and I hope you and your family, everyone is doing great and safe. So, firstly, I'm really happy to be here because I believe कि इस तरह के awareness sessions होना पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं इसी तरह हमें अपने स्किल्स जो हैं वो अपग्रेड करने चाहिए एंड आई वुड लाइक टू अवेयरनेस सेशंस करवा रहे हैं इन पाकिस्तान और अबाउट माई सेल्फ माई नेम इज़ मोहम्मद अहसन खान और आई एम अ डेवलपर एडवोकेट एट IBM पाकिस्तान। तो अगर मैं अपना थोड़ा सा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताऊं तो बेसिकली आई एम हेल्पिंग डिफरेंट डेवलपर कम्युनिटीज़ क्लाइंट्स पार्टनर्स हियर इन पाकिस्तान इन मॉडर्नाइजेशन लाइक अगर उनकी कोई ट्रेडिशनल एप्लीकेशन होती है तो मैं उनकी हेल्प करता हूँ कि वो किस तरह लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके उसको मॉडर्नाइज कर सकते हैं using IBM services and open source services. Other than that, Alhamdulillah, I have successfully delivered more than 45 workshops around cloud native, जिसमें mostly मैं areas जो cover करता हूँ वो है microservices, Kubernetes, Docker and DevOps. Other than that, recently I hope आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो let me tell you कि IBM ने Red Hat की acquisition की थी. सो उसमें हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है रेड हैट ओपन शिफ्ट। सो उसके बारे में मैंने बहुत सारे अवेयरनेस सेशंस कराए हैं पाकिस्तान में जिसमें आई गो थ्रू द कंप्लीट प्लेटफॉर्म कि किस तरह से हम अपनी एप्लीकेशंस ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस को मैनेज कर सकते हैं ऑन रेड हैट ओपन शिफ्ट। तो ये एक क्विक ओवरव्यू था। तो मूविंग ऑन, तो हमारा जो आज का टॉपिक है एक्चुअली हम डिस्कस करेंगे इनोवेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग और उसके लिए हम मल्टीपल एरियाज़ को गो थ्रू करेंगे जिसमें हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग की और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और कितने डिफरेंट तरह के क्लाउड प्रोवाइडर्स अवेलेबल हैं। देन वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट IT आर्किटेक्चर्स जिसमें हम ट्रेडिशनल वर्चुअलाइज्ड और कंटेनराइज्ड आर्किटेक्चर्स की बात करेंगे कि किस तरह पास्ट में एप्लीकेशंस मैनेज होती थी और अब एप्लीकेशंस मैनेज होती हैं। देन हम लोग गो थ्रू करेंगे IBM क्लाउड प्लेटफॉर्म पे कि कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं, IBM का क्लाउड प्लेटफॉर्म का स्टैक किस तरह का है,
और आफ्टर ऑल द डिस्कशन एक्चुअली मैं आपके साथ कुछ ट्रेनिंग रिसोर्सेज शेयर करूँगा जिसमें एक्चुअली फ्रॉम स्टार्ट टू द हार्ड लेवल आपके पास सारी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगी, तो आप अपना जो एक्सपर्टीज़ है वो क्लाउड के अंदर बिल्ड कर सकते हैं. And meanwhile, I'm discussing on the slides. I request you guys कि कोई भी आपका क्वेश्चन हो kindly note down, और आफ्टर द सेशन हम लोग आपसे जो है सारे क्वेश्चंस लेंगे और आई विल ट्राई कि मैं सारे आपको क्वेश्चंस के आंसर दूं. So let's talk about what is cloud computing. So cloud computing की actually 5 major characteristics हैं. जो फर्स्ट वन है वो पे एज यू गो है. तो लाइक अगर आपका कोई भी एक सर्विस अगर क्लाउड के ऊपर रन हो रही है तो आप उसको जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे वैसे ही आपका बिल जनरेट होगा. तो पे एज यू गो मॉडल इज़ लाइक जैसे आपका यूटिलिटीज़ के बिल आता है कि जैसे जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी या वाटर कंज्यूम करते हैं वैसे ही आपके बिल्स आते हैं. इसी तरह क्लाउड पे भी आपके पास पे एज यू गो मॉडल का एडवांटेज अवेलेबल है. एंड अनदर बेस्ट पार्ट इज़ के आपके पास आपको कोई अप फ्रंट कॉस्ट या अप फ्रंट पेमेंट नहीं करनी होती. आप स्मॉल स्केलिंग से अपने सोल्यूशन को क्लाउड पर डिप्लॉय कर सकते हैं और ग्रेजुअली जैसे जैसे आपकी सर्विसेज इंक्रीज हो रही हैं वैसे ही आप अपने अपने आपकी कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं. सो क्लाउड में पे एज यू गो का फीचर और कैरेक्टरिस्टिक अवेलेबल है. सेकेंड इज इलास्टिसिटी. सो इलास्टिसिटी इज एक्चुअली कि आपका जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है वो किस तरह से डिज़ाइन हुआ हुआ है. लाइक अगर कोई भी ऐसा पीक टाइम आ रहा है, लाइक आपकी एप्लीकेशन या आपके इंस्टेंसेस पे बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, तो आपका जो प्लेटफॉर्म है वो किस तरह से हैंडल करेगा ट्रैफिक को. तो इसके अंदर एक और टर्मिनोलॉजी होती है जो जिसको हम कहते हैं लोड बैलेंसर. लाइक सपोज अगर मेरे पास एक इंस्टेंस लाहौर में डिप्लॉय है, ठीक है, और क्लाउड पे एक्चुअली हम रन कर रहे हैं, और एक इंस्टेंस मेरे पास कराची पे रन हो रहा है. नाउ सपोज अगर मेरे लाहौर वाले ब्रांच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो थ्रू द लोड बैलेंस एक्चुअली मैं अपने ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, और जो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट हो रहा है इंस्टेंस लाहौर वाले ब्रांच पे, मैं उसको डाइवर्ट कर सकता हूँ कराची वाली ब्रांच पे. तो क्लाउड में इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है. द थर्ड इज एक्चुअली एजिलिटी. So nowadays most of all of the cloud providers are providing agility. Like आपके पास built-in DevOps tools और services available हैं on cloud. So it's like अगर आप बहुत बेसिक किसी भी सर्विस से स्टार्ट कर रहे हैं ऑन क्लाउड और फ्यूचर में कोई भी नई सर्विस आ रही है या कोई नया प्लेटफॉर्म आ रहा है जिसमें आपको इंटीग्रेट करना है, तो मल्टीपल ऑप्शंस और मल्टीपल सर्विसेज अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अपना एग्जिस्टिंग सोल्यूशन. अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के टूल्स की बात करें एजिलिटी में, तो हमारे पास टेराफॉर्म्स अवेलेबल है, एंसिबल अवेलेबल है. तो मल्टीपल टूल्स अवेलेबल हैं जिससे हम क्विकली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर सकते हैं. डेवऑप्स में मल्टीपल टूल्स अवेलेबल होते हैं. द फोर्थ इज एक्चुअली स्केलेबिलिटी. सो स्केलेबिलिटी इज सपोज आपके पास करंटली एक VM रन हो रहा है या कोई भी एक इंस्टेंस रन हो रहा है, और आपके पास जो है ट्रैफिक उस इंस्टेंस पे बहुत ज़्यादा कंज्यूम होना स्टार्ट हो गया है. तो इन रियल टाइम रादर देन स्केलिंग डाउन योर कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली क्लिक, और क्लिक के थ्रू आप अपनी इंस्टेंसेस को इंक्रीज कर सकते हैं इन रियल टाइम एक्चुअली. तो बेसिकली एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है यहाँ पे कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिसिटी और स्केलेबिलिटी. ठीक है, तो इलास्टिसिटी जो है वो बेसिकली फोकस्ड है हमारे पास नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन में, जो क्लाउड के अंदर जो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है उससे रिलेटेड है. और स्केलेबिलिटी जो है वो एग्जिस्टिंग सोल्यूशन है, आपका इंस्टेंस है जिसको आप रियल टाइम में इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर लोड. फिफ्थ जो है वो क्लाउड में बिल्ट इन सिक्योरिटी अवेलेबल होती है, सही है, जिसका एक कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट. आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट के थ्रू आपको कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन मिल रही होती है आपकी सर्विसेज की. आपकी सर्विस कहाँ रन हो रही है, कौन इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, कंप्लीट लॉग्स और सारी जो आपकी सर्विसेज एक्सेस हो रही हैं उसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड हो रही होती हैं. तो ये 5 मेजर कंपोनेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में. देयर आर मैनी मोर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स बट ये 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में. मूविंग ऑन,
Now let's talk about what exactly cloud delivery models are. तो लेफ्ट पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक डायग्राम अवेलेबल है। तो बेसिकली ये एक हमारा फिजिकल डेटा सेंटर है और इसके अंदर एक रैक है जिसमें हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स अवेलेबल है, लाइक नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन एंड सो ऑन। तो इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं कि कुछ चीज़ें कस्टमर मैनेज करता है और कुछ चीज़ें क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करता है। तो हमारे पास एक्चुअली 3 मेजर क्लाउड डिलीवरी मॉडल्स अवेलेबल हैं, जिसमें जो फर्स्ट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इज एक्चुअली जिसमें आपको मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट कंट्रोल चाहिए होता है। लाइक आप चाह रहे हैं कि आप अपने ओएस की भी मैनेजमेंट करें, आप अपने मिडिल वेयर सर्विसेज की भी मैनेजमेंट करें। सो ओएस से लेकर आपके जो एप्लीकेशंस हैं वो सारी चीज़ें आप एज अ कस्टमर मैनेज करते हैं और बाकी जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो एज अ क्लाउड प्रोवाइडर वो मैनेज करते हैं। द सेकेंड डिलीवरी मॉडल इज एक्चुअली प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में एक्चुअली आप डेटा और अपनी सिर्फ एप्लीकेशंस को मैनेज करते हैं। बाकी जो सारे कंपोनेंट्स हैं फ्रॉम नेटवर्किंग टू रन टाइम, इसमें आपको ना अपना ओएस मैनेज करना है, ना आपको मिडिलवेयर मैनेज करना है, आपको सिर्फ अपनी एप्लीकेशंस और अपना डेटा मैनेज करना है। बाकी जो अंडरलिंग लेयर्स हैं वो सारी एक क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करेगा। थर्ड इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो इट्स लाइक कि ऑलरेडी प्री बिल्ड, ऑलरेडी इस्टेब्लिश सर्विसेज होती हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आप यूआई के थ्रू उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, आपको किसी भी एप्लीकेशन या डाटा मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको एक सिंपल यूआई प्रोवाइड हो जाता है जिसको आपको एक्सेस करना है और बाकी जो लेयर्स हैं वो सारी क्लाउड प्रोवाइडर प्रोवाइड करेगा। इसमें अगर हम एग्जांपल लें सैस में, सॉफ्टवेयर एज सर्विस में, तो हमारे पास जीमेल अवेलेबल है, हमारे पास गूगल ड्राइव बॉक्स अवेलेबल है। तो मैनी डिफरेंट सर्विसेज अवेलेबल हैं जो कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आती हैं। तो इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हम कैसे सेलेक्ट करें कि कौन से क्लाउड डिलीवरी मॉडल्स पे मूव करना है। तो सपोज करें आपके पास एक रिक्वेस्ट आई है जिसमें रिक्वेस्ट में ये है कि एक कस्टमर के पास कंप्लीट रिसोर्सेज हैं और कंप्लीट एक्सपर्टीज है उनके टीम मेंबर्स में और उनको एक प्रॉपर मैनेजमेंट कंट्रोल चाहिए सारी सर्विसेज पे। तो ऑफ कोर्स फिर आप उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को कंसिडर करेंगे और अपना कंप्लीट सोल्यूशन जो डिलीवर करेंगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा दूसरे आपके पास रिक्वेस्ट आ सकती है, तो आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डिलीवरी मॉडल परफेक्ट होगा सोल्यूशन में। मूविंग ऑन, सो राइट नाउ हमारे पास बहुत डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स अवेलेबल हैं इन मार्केट राइट नाउ, जिसमें अमेजोन है, एज्योर है, गूगल क्लाउड है, IBM, ओरेकल और अलीबाबा। सो द बेस्ट थिंग जो इन सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म की है वो ये है कि ये सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म जो हैं एक ही फॉर्मेट और एक ही स्ट्रेटजी के थ्रू अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक अगर मुझे कोई सर्विस अमेजोन पे क्रिएट करनी है तो मैं अमेजोन का अकाउंट लॉगिन करूंगा और उस सर्विस का नाम पुट करूंगा और उस सर्विस की कंप्लीट डिटेल्स मेरे पास शो हो जाएंगी और उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उस सर्विस की, उसकी प्राइसिंग और उसका कॉस्ट कैलकुलेटर एक इंटीग्रेटेड होगा प्लेटफॉर्म में। सिमिलरली वही चीज़ IBM क्लाउड पे भी है। लाइक आपके पास कोई भी सर्विस आप ओपन करें, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है और आपके पास कॉस्टिंग का प्राइसिंग अवेलेबल है, तो एक जो पैटर्न है वो सबका सिमिलर है। यस, थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं ऑफ कोर्स रीजन वाइज, रीजन किसी के ज़्यादा है किसी के कम है, प्राइसिंग की कॉस्टिंग वाइज में भी डिफरेंट होगा, लेकिन सबका स्ट्रेटेजी और सर्विसेज प्रोवाइड करने का तरीका सेम ही है। लाइक अगर आपको कोई सिंपल सी एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, ठीक है, तो अगर आप उसको एज्योर में डिप्लॉय करना चाह रहे हैं तो उसके हमारे पास एक सर्विस है जो कि ऐप सर्विसेज के नाम से अवेलेबल है। ठीक है, ऐप सर्विसेज सिमिलरली आपको कंप्लीट प्लेटफॉर्म देगा जिसमें आपको अपना गिटहब का URL लिंक प्रोवाइड करना है। ठीक है, और वो सर्विस आपकी ऑटो जनरेटेड होकर क्रिएट हो जाएगी। सिमिलरली अगर IBM की बात करें तो IBM में भी एक सर्विस एक्चुअली अवेलेबल है जो कि हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। सर्विस का नाम है IBM टूल्स है। ठीक है, जिसमें सिमिलरली आपको अपनी गिटहब जहाँ पे आपका सोर्स कोड अवेलेबल है वहाँ का आपको लिंक प्रोवाइड करना है और IBM क्लाउड आप एक कंप्लीट सोर्स कोड को ट्रांसफॉर्म कर देगा एक क्लाउड नेटिव प्लेटफॉर्म में। सही है, तो ये सारी सर्विसेज यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं इस तरह। इसी तरह वर्चुअल मशीन्स भी है हमारे पास। वर्चुअल मशीन ये अमेजोन पे EC2 के नाम से अवेलेबल है, IBM पे VSI वर्चुअल सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से अवेलेबल है।
गूगल पे कंप्यूट इंजन. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स जो हैं डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बट सबके जो कैपेबिलिटीज़ हैं और सबके जो फीचर्स हैं वो समहाउ सिमिलर ही हैं. ओके, सो बिफोर आई डिस्कस दिस स्लाइड, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, क्योंकि सबसे पहला स्टेप जो है वो अंडरस्टैंड करने का है कि वेदर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग पे मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट चाहिए कि शुड बी बिकम अ क्लाउड नेटिव प्लेटफॉर्म और नॉट, तो फर्स्ट स्टेप जो आपका होगा वो इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर होगा. पहले आप आइडेंटिफाई करें कि क्लाउड कंप्यूटिंग पे मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. अगर आपने यहाँ पे येस सब में करा है सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में, द सेकंड स्टेप वुड बी कि आप सेलेक्ट करें कि आपको अपना सोल्यूशन डिजाइन करके डिलीवर किस तरह करना है, कौन से डिलीवरी मॉडल जो है वो परफेक्ट होगा. सही है, तो ये सेकंड स्टेप है आपका. थर्ड स्टेप ये है कि आप मल्टीपल क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को गो थ्रू करें, सारी सर्विसेज को अंडरस्टैंड करें, और उसके बाद जो भी आपके सोल्यूशन पे परफेक्ट मैच हो रहा है वो प्लेटफॉर्म क्लाउड प्लेटफॉर्म आप सेलेक्ट करें. ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स हैं, मेजर स्टेप्स, जिसको आप एज अ क्लाउड स्ट्रेटेजी मूव कर सकते हैं जिसके थ्रू. सो इन फ्रंट ऑफ अस एक्चुअली हमारे पास 3 मेजर आर्किटेक्चर्स अवेलेबल हैं इन आईटी मार्केट, और ये 3 आर्किटेक्चर्स जो हैं एक्चुअली सबसे ज़्यादा कंज्यूम होते हैं, और इन तीनों आर्किटेक्चर्स के अपने बेनिफिट्स हैं, अपने कंस्ट्रेंट्स हैं. सही है, तो लेट्स डिस्कस दीज आर्किटेक्चर्स वन बाय वन कि इसमें हम लोग पहले एप्लीकेशंस कैसे डिप्लॉय करते थे और अब एप्लीकेशंस कैसे डिप्लॉय करते हैं. तो स्टार्टिंग विद ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर, हमारे पास हार्डवेयर लेवल अवेलेबल होता है. ठीक है, हार्डवेयर लेवल लाइक कोई डेटा सर्वर जिसके अंदर एक हार्डवेयर होगा, कुछ रिसोर्सेज होंगी, सीपीयू, रैम, ये सारी चीज़ अवेलेबल होंगी. देन ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट ऑफ द 80 और 85% ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो आजकल एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो लिनक्स पे होते हैं, बट इट कुड बी विंडोज़, तो विंडोज़ भी हो सकती है. तो जब ये 2 कंपोनेंट इस्टेब्लिश हो गए, हम अपनी एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट. लाइक मैं यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन ए रन कर सकता हूँ और यहाँ अपनी एप्लीकेशन बी रन कर सकता हूँ. ठीक है, तो दोनों एप्लीकेशन जो है वो अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड कर रही हैं. ठीक है, और बट दोनों एप्लीकेशन जो है वो सेम हार्डवेयर लेवल पे है. नाउ सपोज अगर मेरे पास एप्लीकेशन ए पे कुछ टाइम बाद बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, लाइक यूजर इसको एक्सेस कर रहे हैं मेरी एप्लीकेशन ए को, तो देयर विल बी अ चांस कि मेरी जो एप्लीकेशन ए रन हो रही है वो क्रैश हो जाए. उसका रीज़न ये है कि एप्लीकेशन ए और एप्लीकेशन बी दोनों ही जो है वो सेम हार्डवेयर रिसोर्सेज कंज्यूम कर रही हैं. ठीक है, तो मेरी अगर एप्लीकेशन ए को कंप्लीट रिसोर्सेज असाइन नहीं हो रही होंगी तो एप्लीकेशन बी भी जो है वो अफेक्ट हो जाएगी. सही है, तो ये एक आर्किटेक्चर जो है, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास ट्रेडिशनल में होता है. तो यहाँ पे मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वन वे कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन हो, तो आई रियली वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस कि आप लोगों को क्या लगता है कि ट्रेडिशनल में क्या लिमिटेशन है, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं. आई एम ओपन फॉर योर आंसर्स. आपका जो भी सजेशन है प्लीज़ चैट में बताएं तो हम उसको डिस्कस करें. आप लोग अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, जस्ट इन केस यू फील कि चैट वुड टेक लॉन्गर देन यूजुअल, तो यू वेलकम टू अनम्यूट आल्सो. You always have the session at the end, so it's fine if you want to hold off right now. Listen, आप continue करें. If a question pops up, तो I'll alert you. Okay, so जो सबसे मेजर कंस्ट्रेंट इस आर्किटेक्चर, ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में होता है, एज यू कैन सी हमारे पास कोई भी रिसोर्स एलोकेशन मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है इस ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में. लाइक मैं नहीं बता सकता कि मेरी एप्लीकेशन ए जो है वो कितनी रिसोर्सेज कंज्यूम करेगी और एप्लीकेशन बी कितनी रिसोर्सेज कंज्यूम करेगी. ठीक है, तो रिसोर्स एलोकेशन जो है इसके अंदर ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में अवेलेबल नहीं था. बहुत सारे और भी रीजंस हैं, बट ये जो एक है ये बहुत एक मेजर वन कंस्ट्रेंट था इन ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर. सेकंड, हमारे पास थोड़ा इन्हेंस्ड आर्किटेक्चर अवेलेबल है, जो कि वर्चुअलाइज्ड आर्किटेक्चर जिसको हम कहते हैं, जिसमें हमारे पास हार्डवेयर लेवल है, सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम है,
और फिर एक हाइपरवाइजर लेयर है। सो हाइपरवाइजर लेयर जो है वो एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड लेयर होती है जिसके थ्रू मैं अपनी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, वर्चुअल मशीन के अंदर हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे पास वर्चुअल मशीन में, और किसी भी एप्लीकेशन की बाइनरीज, लाइब्रेरीज और उसकी कंप्लीट डिपेंडेंसीज मैं अपने वर्चुअल मशीन में स्टोर कर सकता हूँ। तो लाइक सपोज आप देख सकते हैं मेरे पास VM1 अवेलेबल है यहाँ पे, और VM2 वर्चुअल मशीन 2 अवेलेबल है। सिमिलरली मैं यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन A को डिप्लॉय कर सकता हूँ और VM2 में मैं अपनी एप्लीकेशन B को रन कर सकता हूँ। सो अब मेरे पास अगर एप्लीकेशन A पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा होगा तो इट्स ओके, बिकॉज मैंने वर्चुअल मशीन 1 को बताया हुआ है कि ये सिर्फ 2 GB ऑफ रैम कंज्यूम करेगी वर्चुअल मशीन, और जो वर्चुअल मशीन 2 है वो इतनी रिसोर्सेज कंज्यूम करेगी। सो इन केस अगर ये एप्लीकेशन क्रैश भी होती है तो मेरा VM1 क्रैश होगा, बट जो मेरा VM2 रन हो रहा है वो सक्सेसफुली स्टैब्लिश रहेगा और रनिंग में रहेगा। सो ये इस तरह से हमने अपने वर्चुअलाइज आर्किटेक्चर में अपने जो प्रीवियस आर्किटेक्चर था वो उसको रिजॉल्व किया है, और ये एक इनहेंस्ड वर्जन है वर्चुअलाइज आर्किटेक्चर। बट स्टिल इसमें थोड़े से लिमिटेशंस और कंस्ट्रेंट्स हैं। एक जो कंस्ट्रेंट है इसमें वो ये है कि इसमें आप देख सकते हैं हर VM के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, सो इन केस अगर मेरा VM1 क्रैश डाउन हो रहा है या स्केल डाउन हो रहा है तो VM1 विल टेक सम टाइम टू रिबूट। ठीक है, वो टाइम लेगा रिबूट होने में, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम सारी लाइब्रेरीज वगैरह रिस्टैब्लिश करता है और ये सारी चीज़ें, तो हमारे पास टाइम कंजम्पशन वाली चीज़ इसमें होगी वर्चुअलाइज्ड आर्किटेक्चर में। तो ये एक कंस्ट्रेंट था वर्चुअलाइज्ड आर्किटेक्चर में। द थर्ड वन इज वन ऑफ द मोस्ट इनहेंस्ड आर्किटेक्चर, और आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा स्टैब्लिश और इम्प्लीमेंटेड आर्किटेक्चर जो है वो कंटेनराइज्ड आर्किटेक्चर है। And according to the reports, most of the organization in 2023 or 24 will be running their services in the production environment on Dockers and the container architectures. तो ये reports हैं, ये सारी predictions हैं. So let's go through the architecture. हमारे पास same hardware level है, operating system है और container run time है इधर। ठीक है, तो जब भी आप कोई container platform install करेंगे अपनी मशीन पे तो container run time install हो जाएगा। Here you can see हमारे पास हाइपरवाइजर लेयर कोई अवेलेबल नहीं है जो हमारे पास वर्चुअलाइज में अवेलेबल थी। कंटेनर रन टाइम से आप जो अपने कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हैं। सही है, तो कंटेनर 1, कंटेनर 2, जितनी भी आपकी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आप 100 and thousands ऑफ कंटेनर्स स्टैब्लिश कर सकते हैं। और कंटेनर्स के अंदर हमारे पास सेम वो भी डिपेंडेंसीज और जो भी लाइब्रेरीज हैं एप्लीकेशन की वो हम स्टोर कर सकते हैं। सही है, सो नाउ सपोज अगर मेरे पास सेम ट्रैफिक जो है कंटेनर ए, मतलब जो एप्लीकेशन ए रन कर रहा है उस पर आता है, तो ये क्रैश हो गई मेरी एप्लीकेशन जो कंटेनर 1 था। बाकी जो एप्लीकेशन रन हो रही हैं ए या बी या सी एप्लीकेशन, उनको कोई अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जो एक एडवांटेज यहाँ पर है वो ये है कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंटेनर में रन नहीं होगा। ये सारे कंटेनर्स जो हैं डायरेक्टली हार्डवेयर लेवल पे रन होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कंजम्पशन जो है रिसोर्स की वो हार्डवेयर लेवल से होती है। इस वजह से कहते हैं कि जो कंटेनर्स हैं एक्चुअली वो बहुत लाइट वेट होते हैं एज कम्पेयर टू वर्चुअलाइज्ड आर्किटेक्चर। तो ये 3 डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैं जिनके हमने इन डिटेल डिस्कशन करी है। So moving on, let's talk about Kubernetes architecture. So Kubernetes जो है वो actually बहुत ही hot technology है right now, और actually एक open source platform है जो कि help करता है in managing the containerized based workload. जैसे कि अगर आप लोग already किसी containerized architecture को follow कर रहे हैं तो Kubernetes बहुत ज़्यादा help कर सकता है in automation। ठीक है, और द बेस्ट थिंग इज इट इज़ ओपन सोर्स, तो हर कोई इस पे कंट्रीब्यूट कर सकता है और इसको यूज़ कर सकता है। इफ़ यू आर नॉट यूजिंग द स्टैंडर्ड वन, लाइक अगर आप किसी प्लेटफॉर्म लाइक IBM का कोई कुबरनेटिस सर्विस यूज़ नहीं कर रहे हैं, मैनेज सर्विस यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो पेड है, बट ओपन सोर्स वाला आप उसको कम्प्लीटली फ्री यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली क्यूबरनेटिस को ओपन सोर्स किया था गूगल ने इन 2014। ठीक है, तो क्यूबरनेटिस का जो आर्किटेक्चर है एक्चुअली इट इज़ बेस्ड ऑन मास्टर एंड द वर्कर नोड। सही है, तो आपके पास मास्टर नोड होता है जिसमें आप अपने कंप्लीट कमांड्स और एवरीथिंग रन करते हैं। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है मास्टर नोड आपका आपके मास्टर वर्कर नोड्स को मैनेज करने में।
तो जो ये नोड्स है बेसिकली ये आपके पास फिजिकल मशीन्स भी हो सकती हैं या आपके पास वर्चुअल मशीन्स भी हो सकती हैं, सही है। तो और इनसाइड द वर्कर नोड्स हमारे पास पॉड्स का कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। पॉड्स सिमिलरली आप अपने कंटेनर्स, मल्टीपल कंटेनर्स को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वर्कर नोड्स में जो क्यूबिनिटीज फंक्शनैलिटीज और कैपेबिलिटीज देता है उसमें आपके पास क्यूबलेट है, क्यूब प्रॉक्सी है। तो अगर कोई भी कंटेनर ड्रॉप डाउन हो रहा है या क्रैश हो रहा है तो क्यूबिनिटीज उसको सेकंड्स में इस्टेब्लिश कर देता है, ठीक है। तो ये एक डिस्कशन है क्यूबिनिटीज आर्किटेक्चर का। इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, लाइक एपीआई सर्वर, स्केजुलर, किस तरह से स्केड्यूल करना है कंटेनर्स को। अगर आपको कंप्लीट डिस्कशन या सारे कंपोनेंट्स को गो थ्रू करना है, आई विल रिक्वेस्ट कि आप ये लिंक है यहाँ पे kubernetes.io, आपको कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा क्यूबिनिटीज का, तो आप इसको ज़रूर गो थ्रू करिएगा। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट IBM क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो वैसे तो IBM क्लाउड प्लेटफॉर्म की आपको बहुत सारी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी हर जगह, बट आई हैव ट्राइड कि मैं उसको एक समराइज फॉर्म में कर दूं। तो IBM क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है वो एक्चुअली कंबाइन करता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज को और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज को। बेसिकली देयर आर मैनी सर्विसेज जो कि अवेलेबल है एज अ प्लेटफॉर्म एज सर्विस, जिसमें आपके पास वर्चुअल मशीन्स आ जाती हैं, राउटर, स्विचेस, वर्चुअल नेटवर्क्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। प्लेटफॉर्म एज सर्विस में वो वाली चीज़ें हैं जिसमें आपके पास ओपन शिफ्ट अवेलेबल है, क्लाउड फाउंड्री अवेलेबल है, बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल है आपके पास। सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज के many people actually think कि IBM is only handling and working with the enterprises or large sizes businesses, but ऐसा सही नहीं है, क्योंकि IBM बहुत सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहा है स्मॉल, मीडियम और इवन स्टार्टअप्स को कंप्लीट सपोर्ट दे रहा है। तो मैं आपको एक इसका गो थ्रू करवा देता हूँ कि ये एक प्रोग्राम है IBM का, स्टार्टअप विद IBM। तो आप अगर इस पे विजिट करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपके पास कंप्लीट डिटेल्स अवेलेबल हैं, सही है। तो आपका कोई भी स्टार्टअप है, आप कोई भी स्मॉल स्केलिंग पे काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से सारी डिटेल्स मिल सकती है। अच्छा, कैसे स्टार्ट करना है, इसमें ये होता है कि आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपके पास $1000 जो है फ्री आ जाएंगे IBM क्लाउड क्रेडिट्स के, आप इसको कम्प्लीटली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके थोड़े से कंस्ट्रेंट्स हैं, वो आप गो थ्रू कर लीजिएगा कि आपका बिजनेस जो है वो लेस देन 1 मिलियन हो और बाकी चीज़ें। आप एक बार जब ग्रेजुएट होंगे 1000 पर डॉलर से स्टार्टअप से, तो आप अपने अकाउंट को अपग्रेड कर सकते हैं $10,000 से, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा और आपको उसको फिल करना है और फिर आप उस पर अपना स्टार्ट कर सकते हैं प्रोग्राम। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑफिशियल IBM पेज पे आपका स्टार्टअप शोकेस होगा, सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से मल्टीपल स्टार्टअप्स अवेलेबल हैं, तो आपका पेज भी यहाँ पे जो भी आपका स्टार्टअप है वो यहाँ पे शोकेस हो जाएगा। ओके, सो मूविंग ऑन, एक्चुअली IBM पे जो है वो हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास वेब एप्लीकेशंस की सर्विसेज अवेलेबल है। वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी सर्विस ऑफ IBM इज एक्चुअली वाटसन एक AI इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आपके पास इसके अंदर सब सर्विसेज भी आ जाती हैं, जिसमें आपके पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर अवेलेबल है, स्पीच टू टेक्स्ट है, टोन एनालाइजर, टेक्स्ट टू स्पीच, मल्टीपल सब सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो द बेस्ट थिंग इज एक्चुअली ये सारी सर्विसेज AI पे प्री बिल्ड है, ठीक है। आपको कोई चीज़ फ्रॉम द स्क्रैच नहीं करनी पड़ती, आपको API कॉल करनी होती है और अपनी एप्लीकेशन या किसी भी स्टैक के अंदर कॉल करना होता है। देयर आर डेटाबेस सर्विसेज अवेलेबल, जिसमें DB2 है, MongoDB है और बहुत डिफरेंट सर्विसेज अवेलेबल है, सही है। DevOps में हमारे पास, जैसे मैंने बताया, टूल चेन की सर्विस अवेलेबल है। सो हमारे पास जो है 190 जो है टोटल सर्विसेज अवेलेबल है उसके सॉरी 1 सेकंड, अगर मैं आपको ये लिंक ओपन करके दिखाऊं, ये लिंक आप अगर ओपन करते हैं तो आपके पास कंप्लीट जो फ्री सर्विसेज अवेलेबल है जो आप एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। सारी सर्विसेज एज अ फ्री अवेलेबल हैं और कंटेनर रजिस्ट्री जैसे कि कंटेनर्स डिलीवरी और ये सारी सर्विसेज एक्चुअली फ्री एक्सेस हैं, ठीक है। आप इसको फ्री एक्सेस कर सकते हैं।
बाकी जो है बाकी जो सर्विसेज एक्चुअली वो पेड हैं। सही है। तो बेसिकली स्पेशली इस इवेंट के लिए हमने अपनी IBM टीम से रिक्वेस्ट करी थी कि हमें एक लिंक प्रोवाइड कर दें जो कि हम अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकें। तो आपके सामने एक ये लिंक अवेलेबल है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने अकाउंट को क्रिएट करने में। ठीक है, अगर आप अभी तक आपके पास IBM का अकाउंट नहीं है तो आप इस लिंक के थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट करिएगा, तो आपके पास फ्री सर्विसेज आ जाएंगी। ठीक है, 40+ जो भी फ्री सर्विसेज हैं आप उसको फ्री एक्सेस कर सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग आप इसके लिंक के थ्रू कर सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट रीजन्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, आपके पास जैसे जो एक स्पेसिफिक रीजन होता है IBM में जहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, लेकिन इस लिंक के थ्रू आप लोग जो है अपने मल्टीपल रीजन अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। इन केस अगर कोई पेड सर्विसेज यूज करना चाह रहा है, ठीक है, तो आपको अपना अकाउंट जो है वो अपग्रेड करना होता है टू पे एज यू गो मॉडल पे। सही है, तो आप अपने पे वाली जो सर्विस है, पेड सर्विसेज जो है वो आप यूज कर सकते हैं। द बेस्ट थिंग इज अगर आप लाइट प्लान के थ्रू जा रहे हैं, अगर आप इस लिंक के थ्रू यूज कर रहे हैं, तो IBM जो है कोई भी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या ये सब नहीं मांगता, आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं IBM के साथ। ओके, सो लेट मी शेयर सम यूजफुल लिंक्स विद यू गाइस। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो एक्चुअली IBM के पास एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है कॉग्निटिव क्लास डॉट AI। ठीक है, तो इस लिंक पे आपको कंप्लीट ट्रेनिंग मिल सकती है। लाइक अगर मैं बताऊं कि आप इंटरेस्टेड हैं बिग डेटा की ट्रेनिंग में, डेटा साइंस की ट्रेनिंग में, डेटा साइंस हो गया, ब्लॉकचेन या कंटेनर्स, तो आप इस पर क्लिक करें और आपके पास एक पेज ओपन होगा और उसमें कंप्लीट पाथ डिफाइन होगा कि किस तरह से आप अपनी ट्रेनिंग्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हेयर एज यू कैन सी हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल हैं। सही है, जैसे कि यहाँ पे फोर बैचेज हैं और 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ये कंप्लीट ट्रेनिंग है स्टेप बाय स्टेप। हर कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको एक बैज असाइन होगा। ठीक है, आप अपने बैज आपको मिलेगा, आप उसको शोकेस कर सकते हैं किसी भी अपने प्रोफाइल पे। सही, तो ये कंप्लीट बैजेस जो हैं ये फ्री हैं, आपको इसको कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे फ्री हैं। तो आप इस लिंक को ज़रूर गो थ्रू करिएगा। Another important thing is एक्चुअली मैंने मल्टीपल कोड पैटर्न्स और ट्यूटोरियल्स पब्लिश किए हुए हैं IBM क्लाउड की ऑफिशियल साइट पे। ठीक है, जो कि thousands of developers are actually using these code patterns अपनी सर्विसेज क्रिएट करने में, कि किस तरह वो IBM की सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं। सही है, तो ये एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप कोड पैटर्न है कि किस तरह से आप अपनी सर्विसेज क्रिएट, मतलब डिफरेंट यूज केसेस हैं, तो ये वन ऑफ देम है। अगर मैं इस साइट का आपको थोड़ा सा गो थ्रू दूँ तो IBMdeveloper.com जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। अगर कोई भी ऑडियंस में से अगर स्टूडेंट है तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप इस साइट को ज़रूर गो थ्रू करें, क्योंकि जब आप FIP वगैरह डिसाइड कर रहे होते हैं तो आपको आइडियाज़ की ज़रूरत होती है। तो developer.IBM जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है जिस पर आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपका इंटरेस्ट और आप अपना आइडिया डेवलप करना चाह रहे हैं सपोज कंटेनर्स पे, ठीक है, यहाँ पे टॉपिक्स गिवन है। आप सपोज करें कंटेनर्स पे आपने टॉपिक सेलेक्ट किया, आप कंटेनर पे क्लिक करें, अब आपके कंटेनर्स की सारी रिसोर्सेज आ जाएंगी। ठीक है, तो अब मुझे देखना है कि मैं किस तरह से कंटेनर को क्रिएट कर सकता हूँ ऑन IBM क्लाउड। सही है, तो लेफ्ट पे आप देखें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करें ट्यूटोरियल्स पे, तो सारे स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड हो जाएगी कि किस तरह से मैं अपनी सर्विस क्रिएट कर सकता हूँ। सही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक साइट है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग ऑन दिस साइड इज़ कि आप अगर स्क्रॉल डाउन करें थोड़ा सा, तो आप किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के बेसिस पे अपना सोल्यूशन डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, लाइक फाइनेंस। सही, आप फाइनेंस पे क्लिक करें और फाइनेंस के रिलेटेड सारे यूज़ केसेस, सारी सर्विसेज आ जाएंगी। लाइक यहाँ पर हमारे पास वो है कि इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स कैसे यूज़ कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो उसके रिलेटेड यूज़ केस आपके पास आ जाएगा। अगर आप कोई मॉडल्स ट्रेन करवा रहे हैं AI के थ्रू तो आप SPSS मॉडलर यूज़ कर सकते हैं। तो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको सारे गाइड्स यहाँ पे मिल जाते हैं। सही है, इसी तरह से रिटेल पे भी आपके पास बिजनेस आपके पास इंडस्ट्रीज अवेलेबल है, रिटेल, गेमिंग, तो आप इनमें से अपना आइडियाज़ जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। Another important thing, actually
ये होता है कि हमारे पास ऑलरेडी कुछ लोगों के पास वेबसाइट्स होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं जो वो ऑफलाइन रन कर रहे होते हैं, राइट। वो पेपर वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, उनको अपना प्लेटफॉर्म ऑनलाइन करना होता है या उनको क्लाउड नेटिव एक्चुअली प्लेटफॉर्म बनना होता है। तो एक्चुअली रिसेंटली मैंने जो है कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल गिटहब पे रन किया था, जिसमें आप अपना जो एग्जिस्टिंग सोल्यूशन है उसको आप IBM क्लाउड पे जो है वो रन कर सकते हैं। तो उसका गिटहब लिंक यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप इस पर क्लिक करें और इस लिंक को ओपन करेंगे तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड मिल जाएगी कि आप अपने सिंपल सोल्यूशन जो आपका है ऑफलाइन, आप उसको किस तरह ऑनलाइन कर सकते हैं और एक क्लाउड नेटिव सोल्यूशन बिल्ड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल कुछ स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। सो बेसिकली इसके अंदर सिंपली ये है कि क्लाउड फाउंड्री जो मैं बता रहा था, तो क्लाउड फाउंड्री और टूल चेन के थ्रू आप जो है अपनी सर्विस को इस पर क्रिएट कर सकते हैं। तो टूल चेन जो है वो एक्चुअली डेवऑप्स के अंदर आती है, कैटेगरी में आती है कि आपके पास एक सोर्स कोड गिटहब पे अपलोड होगा, सही है, और गिटहब पे आपके पास मे बी डिफरेंट रन टाइम हो। आप यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पर सपोर्टेड मल्टीपल रन टाइम्स है, जिसके अंदर .NET है, रूबी है, पाइथन है, PHP है। तो आपको सिंपली बस अपना जो रन टाइम है करंट एग्जिस्टिंग सोल्यूशन का रन टाइम सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको जो गिटहब का लिंक है आपका, जो जहाँ पे आपका सोल्यूशन रन हो रहा है, आपको सिंपली वो लिंक अपना प्रोवाइड करना है, सही है। तो आप यहाँ देखेंगे तो आपको अपना बस सिंपली गिटहब का लिंक जो है वो प्रोवाइड करना है और IBM जो है सारी चीज़ों को मैनेज करेगा खुद ही। बस 2-3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। मूविंग ऑन, अगर कोई भी अपना करियर या अपने स्किल्स को इस्टेब्लिश करना चाहता है और क्रिएट करना चाहता है इन क्लाउड में, तो मैंने कुछ रिसोर्सेज हैं उसको ऐड किया था, ठीक है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है जो एक्सपर्ट लेवल वाले लोग हैं सिर्फ उसी ये वही लोग इसको फॉलो करें। बिगनर्स और मीडियम लेवल वाले जितने भी लोग हैं वो इस सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। जो सबसे पहला ट्रेनिंग है एक्चुअली वो क्यूबरनेटीज़ के, जैसे मैं बता रहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्यूबरनेटीज़ पे अगर आप क्लिक करें तो आप इस लिंक पे रीडायरेक्ट होंगे, सही है। आपके पास ये जो 3 सर्टिफिकेशंस हैं ये पेड सर्टिफिकेशंस है और ये जो है $350+ पे मेरे ख्याल से सर्टिफिकेशन है। बट क्यूबरनेटीज़ ने जो है रिसेंटली जो है फ्री कोर्सेज करवाना शुरू करे हैं, ठीक है। तो EDX पे आपको क्यूबरनेटीज़ के फ्री जो कोर्सेज हैं वो मिल जाएंगे, जिसमें आपके पास इंट्रोडक्शन टू क्यूबरनेटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ें हैं और लिनक्स है। ये तीनों कोर्सेज फ्री अवेलेबल हैं जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट कोर्स है और बहुत अच्छा कोर्स है, क्योंकि जब मैंने भी क्लाउड में स्टार्ट लिया था तो ये मेरा सबसे पहला कोर्स था जो मैंने कंप्लीट किया था। और इस कोर्स के थ्रू एक्चुअली आपको हर छोटी छोटी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी क्लाउड की, उसका आर्किटेक्चर क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसको ज़रूर इसमें इनरोल करें और इसको पढ़ें, सही है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सही है। और ये IT मास्टर्स की एप्लीकेशन वेबसाइट है एक्चुअली जो फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। अगर कोई थ्योरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आई विल रिकमेंड कि आप इसको ज़रूर गो थ्रू करें। उसके बाद अगर आप स्पेसिफिकली IBM की ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं तो IBM की कॉग्निटिव क्लास पे ही हमारे पास डिफरेंट एक जो कोर्स है बहुत अच्छा, वो ये कोर्स है IBM क्लाउड एसेंशियल्स। ये तकरीबन 6 और 8 आवर्स का कोर्स है। इसमें कंप्लीट IBM की जो सर्विसेज हैं, IBM में कौन से रीजन्स हैं, किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, AI सर्विसेज एंड एवरीथिंग, आपको कंप्लीट डिटेल्स इस कोर्स के थ्रू पता चल जाएंगी। ये कोर्स स्पेसिफिकली IBM क्लाउड के लिए है। तो ये जो है कुछ ट्रेनिंग रिसोर्सेज थी। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, एक्चुअली एज यू नो कि आफ्टर द पेंडेमिक, पहले हम पेंडेमिक से पहले एक्चुअली हम लोग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे, क्लाइंट्स के पास जाते थे ऑन लोकेशन और उनको ट्रेनिंग्स देते थे, वर्कशॉप्स प्रोवाइड करते थे, उनका करंट एग्जिस्टिंग सोल्यूशन समझकर उनकी सर्विसेज इंटीग्रेट करते थे विद IBM और ओपन सोर्स सर्विसेज। बट आफ्टर द पेंडेमिक एक्चुअली हम लोग जो है डेवलपर सीरीज़ रन कर रहे हैं, सही है। और ये सारी सीरीज़ जो हैं ये ऑनलाइन है और कोई भी स्टूडेंट या कोई भी फैकल्टी मेंबर अगर इंटरेस्टेड हो
तो हमारी सीरीज़ ज्वाइन कर सकता है। और हम सिर्फ क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजीज़ पे नहीं, बल्कि सारी जितनी टेक्नोलॉजीज़ हैं, लाइक सिक्योरिटी, डेटा साइंस, जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उस पर बात करते हैं। सही है, तो यहाँ पे 2 लिंक्स शेयर हैं, एक IBM कराची का है और एक इस्लामाबाद का है। तो हर दिन हम एक नया इवेंट कराते हैं, तो कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो तो आप लोग यहाँ पे रजिस्टर करें ज़रूर और इस इवेंट को अटेंड करें, ठीक है। और क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें नई सिखा रहे होते हैं और आपको फ्री क्लस्टर्स मिलते हैं इसमें, क्योंकि रेड हैट ओपनशिफ्ट का क्लस्टर जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। बट अगर आप ये सीरीज़ अटेंड कर रहे हैं हमारे साथ तो आपको फ्री क्लस्टर्स असाइन होते हैं। सही है, तो आप उसको अपनी एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। So that's all from my side. बहुत ज़्यादा डिस्कशन आई थिंक हमने करी है, सारी टेक्नोलॉजीज़ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें इन डिटेल डिस्कस करी हैं। अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को डिस्कस करनी हो तो आप रीच आउट कर सकते हैं मुझे डायरेक्टली मेरे मेल पे, और अगर किसी को लिंक्डइन पे कनेक्ट करना है तो वो लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकता है। बट अगर आप लिंक्डइन पे कनेक्ट कर रहे हैं तो एक स्मॉल सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली नोट सेंड कर दीजिएगा कि आपने इस इवेंट के थ्रू जो है मुझे रिक्वेस्ट भेजी है। सो ओवर टू यू हाशिम, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच एहसन, वेरी नाइस सेशन। आई थिंक आपने जिस तरह कवर किया स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेप्स कि अगर आपने क्लाउड पे जाना है तो पहले अपनी नीड्स देखें, देन यू लुक एट कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे जाना है या आपने प्लेटफॉर्म लेवल पे जाना है। सो आई थिंक यू कवर्ड इट ऑल एंड आई रियली होप कि स्पेशली जो लर्निंग मटेरियल आपने शेयर किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फैक्ट कि जो चीज़ें और द जर्नी फ्रॉम वेयर यू बिगेन योर जर्नी इनटू क्लाउड, plus the free courses. So highly recommended to everyone to utilize these. We're also working with the IBM to start a series of hands-on also. It's still at infancy, but if it is finalized, we'll surely share those with you. Now, if anybody would like to ask any question to ask to Hassan, we still have 15 minutes. Please feel free to unmute yourself, introduce yourself, and share your thoughts and queries. Well, looks like कोई question नहीं है. अगर आप लोगों के होते हैं सवाल तो you can always reach out to us at spinlabs@spsnet or directly to Hassan. We will have a quick round of introductions, especially from the new participants. I see a couple of new names here. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वन बाय वन, आई स्पीक योर नेम, अगर आप अपना अनम्यूट करके अपना तारुफ करवा दें एंड योर इंटरेस्ट इन क्लाउड टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली. We have Abdul Wadood. Sir, would you like to unmute and share with the audience? जी अब्दुल वदूद, आपका माइक अनम्यूट हुआ था बट it's again back to mute. Next we have Dr. Hassan Jamil. Dr. Hassan has been participating in the 6 sessions previously also. Sir, would you care to unmute and share with the audience about yourself? Assalamu alaikum. Can you hear me? Yes, sir, we can. Okay. Actually, I missed a little bit. Just last 10 minutes, I received a call, so I missed. Is it I need to introduce myself or just share some? I actually missed last 10 minutes. Just fine. So no, that's fine. We'll be sharing the recordings after this, so inshallah you'll be able to get the missed part. आप अपना थोड़ा तारुफ करवा दें and your interest in cloud technology, please. ठीक, okay. So my name is Dr. Hassan Jamil and I work at FAST NUSIS Karachi as assistant professor. So my interest is specifically in private cloud, but recently I have been teaching cloud computing in masters and bachelors, so I have developed interest in public cloud as well. So
I have established a private cloud at FAST Karachi as well. So I have expertise in OpenStack. So in future, if anybody interested, we can have a session on private cloud as well. So meanwhile, we arrange a session in FAST Karachi with Dr. Arshad and Mr. Hashim. So we introduced IBM Cloud as well in our campus. So some of the students, they created projects as well on IBM Cloud. So that's it from my side. Right. Thank you, Dr. Junaid. Thank you. Next, we have Fatma Abbasi. Ji, Fatma Abbasi, would you care to unmute and share with the audience? We're going through a round of introductions. Next, we have guest attendee. आपका नाम guest आ रहा है तो next we have representation from Lahore Garrison University. Sir, would you care to unmute and share with the audience? जी, Lahore Garrison University. Next we have Momina Tayyiba. जी, Miss Momina Tayyiba. All right, so I hope this session, this was worth the time that you spent here. We really wanted to share with you some of the learning materials and specifically जो architecture पे ऐसा ने आपके साथ share किया because we have received a lot of interest around these areas from academia. Those of you who are joining for the first time, ये sessions हर weekly base पे होते हैं. Each week we focus on one technology area. We have 4 technology tracks that we're focusing on: artificial intelligence, cloud, cybersecurity, and IoT. Today was the 4th session on cloud. Next week we'll have the 4th session on IoT technologies. जो cloud का अगला session होगा, that will be 4 weeks from now. और just keep checking your emails. आप में से जिसने sign up नहीं किया, we always encourage कि you should sign up. Most of the people who are here in the attendees, they normally receive our emails or somebody shares with them, externally. तो if you go to website, ये मैं आपके साथ chat में paste भी कर देता हूँ, spsnet.com/spinlabs. So we have 2 sign up forms there as a faculty and as a student. So based on your role, I would encourage कि आप वो ज़रूर join करें. But this allows us to do is कि I normally reach out and talk to individuals, and then whenever we have, just like we do these professional development sessions, these special interest group sessions, we are always, because we are a company based out of our office is based, our head office is just outside of DC, and we have presence in Pakistan, Middle East. So we have customers who have problems for which we look for certain skills. On this website, जो मैंने अभी chat में share किया है, we are right now looking for a couple of certifications, and by that I mean individuals जो कि उन certain technologies में interest रखते हैं. Also, we share with the audience, with the people who have registered with us, the projects that we have from customers. So based on your form submission, जहाँ पे आप अपनी skills mention करते हैं, based on my conversations with each one of you जो form submit करते हैं, we then go over the notes and then we reach out and share the relevant projects जब और जैसे भी वो आते हैं. Plus these professional development sessions, we have a couple of side sessions going also जो कि SIG के अलावा होते हैं. जैसे we have a focus session on security operations center. अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी को सिक्योर करना है तो वो कैसे कर सकते हैं. And the reason I'm mentioning is because everything is so interrelated. जैसे भी एहसन मेंशन कर रहे थे कि आपको क्लाउड भी आना चाहिए, तो क्लाउड के साथ आपको डेवलपमेंट भी इन्वॉल्व हुई थी. अब आपने अगर AI पे डेवलप करना है तो वो सर्विसेज विद इन क्लाउड ही मौजूद है. फिर IoT पे काम कर रहे हैं तो डेटा की सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व हो जाती है, एंड सो ऑन. So
any one of you who's interested, I would highly encourage कि आप website को ज़रूर visit करें. And with this, I believe we can wrap up this session. I would like to thank Ahsan Khan for joining us today and sharing with the audience in more detail about IBM Cloud. आप में से अगर कोई by the way present करना चाहता है तो the platform is open. It's an open forum, so you can also reach out to me or Ahmed Jafar. मैं ये email ID भी यहाँ पे mention कर देता हूँ, spinlabs@spsnet.com. So with this, unless anybody has any comment or suggestion, we can close this session. All right. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you, Ahsan. Wish you good evening and see you in the next Thank you very session. much. Thank you. Allah Hafiz. Okay, Allah Hafiz. Thank you. Ji, Allah Hafiz.